Student, good morning. Hope you are doing well. And my name is Shruti Jan, and I am your faculty of International Marketing. This is your third lecture, and in this lecture, we will discuss what is micro environment and how micro environment is different from macro environment, and what are the components of micro environment. In the last lectures, we have discussed what is the importance of international business environment, and how a marketer have to analyze these factors so that he can be successful in the environment or in the market. In this lecture we will cover what is micro environment and how micro environment is useful for a marketer. First of all, what is business environment? There are two types of business environment. First is your internal business environment, and second is your external business environment. In the last lecture, we have covered all the components of your internal business environment. That is value system, goals and objective management, etc. In this lecture, we will cover your micro part, and in further lectures, we will be covering all your macro environment. So external environment, it refers to environment that has indirect influence, मतलब that cannot be directly affect your business, it will be affecting your business indirectly, that you cannot control. You have to change yourself according to the factors available in the market. Like if अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, you have to change yourself according to the condition. Like if they are today in scenario, talking about today scenario, अगर हम अभी कोविड के सिचुएशन की बात करते हैं, every businessman have to change its business strategies. If they are selling their product at much high cost, they have to reduce the price because economic condition बहुत ज़्यादा down हो चुकी है. तो all these factors are the external factors which are not in your hand. You have to change yourself according to the एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस में एंड अनकंट्रोलेबल होते हैं बिजनेस में. सो एंड दे आर टाइप्स कौन कौन से हैं? माइक्रो एंड मैक्रो. So micro environment is completely different from macro environment. Micro environment is also known as task environment or operating environment. It will be having a direct impact on your business. एज कम्पेयर टू माइक्रो एनवायरनमेंट, उसको जनरल एनवायरनमेंट बोला जाता है. इट विल इफेक्ट एवरी बिजनेस सेम वे में इफेक्ट करेगा. अगर कोविड हुआ है तो इट विल बी इफेक्टिंग एवरी बिजनेस, नॉट अ पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट करेगा. माइक्रो एनवायरनमेंट आर इनिशियली लिंक्ड विद कंपनी टू देन मैक्रो एनवायरनमेंट. वो एक कंपनी से रिलेटेड होता है, बट माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो पूरी की पूरी आपकी एक इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, एक एज ए इकोनॉमी होल से रिलेटेड होगा आपका. Now what is micro environment? Micro environment is the internal part of a company. वो internal part of the company का it can be controlled by a company. company से controlled हो सकता है. Like it includes suppliers, intermediaries, it includes your employees, it includes your competitors. You can change them according to your demand, according to your situation, according to your need. But as compared to micro environment, you cannot change those factors. So it is related to a particular company and you can control these factors. सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो बट सारे नहीं कर सकते, बट कुछ कंट्रोल कर सकते हो. लाइक इफ यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम योर सप्लायर्स, अगर वो आपको सही क्वांटिटी में गुड नहीं देता, अगर वो आपको अच्छा माल नहीं देता, तो यू कैन चेंज योर सप्लायर्स. अगर आपके एम्प्लॉयज सही से काम नहीं करते, आप उनको चेंज कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो. अगर आपके मार्केट इंटरमीडिएटरी सही से काम नहीं कर रहे, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं. सो यू कैन कंट्रोल देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सप्लायर्स? सप्लायर्स आर दोज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे को वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट की गुड्स में हमारे को. लाइक इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल या आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कार, सो आई नीड इंजन फॉर माई कार, आई नीड एसेसरीज फॉर माई कार. तो मैं सब कुछ तो खुद से नहीं प्रोड्यूस करूँगी, तो आई नीड सप्लायर फॉर दैट. तो इंजन मैं कहीं और से लेके आती हूँ अपने, और एसेसरीज कहीं से लेके आती हूँ, तो ऑल दीज आर योर सप्लायर्स. सो अगर मेरे को लगता है कि मेरा सप्लायर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मेरा जैसे वैसे ही प्रोडक्ट जाएगा. बट अगर मेरा सप्लायर मेरे से कोऑपरेट नहीं कर रहा, मेरे को अच्छा माल नहीं दे रहा, तो वो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट माई प्रोडक्ट. सो दीज सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइड ऑन टाइम पे प्रोवाइड करना चाहिए एंड शुड प्रोवाइड द
स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, जो मेरी स्पेसिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट प्रोवाइड करना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक सप्लायर ने मेरे को गलत माल प्रोड्यूस करा, गलत माल सप्लाई करा, गलत इंजन मेरे को दे दिया और मैंने वो कार में लगा दिया, उससे एक्सीडेंट्स हो गए, तो सप्लायर का कोई नाम नहीं होगा, नाम मेरा ख़राब होगा। सो सप्लायर के ऊपर रिलाई करती हूँ मैं कम्प्लीटली। अगर मेरा सप्लायर अच्छा माल देता है तो मेरा अच्छा इमेज क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं क्रिएट होगा। सो सप्लायर शुड बी रिलायबल एंड ऑलवेज देयर शुड बी एक होती है टेक्निक्स आज के टाइम में कंपनीज कर रही हैं, बैक एंड और फॉरवर्ड कंपनीज करती हैं बैक एंड एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स। बैक एंड में क्या करती हैं, वो खुद जाके सप्लायर बन जाती है, खुद अपना माल बनाने लगती हैं। लाइक अमूल है, उसने क्या करा, अपनी खुद की सारी गायें भैंस सब कुछ अपना रखने लग गई है, खुद के फील्ड्स हो गए। सो वो रॉ मटेरियल खुद का ही जनरेट कर रही है। बैक एंड वाले होते हैं डायरेक्टली कंट्रोल करवाती हैं जाके। क्लियर? सो अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं टोयोटा की। टोयोटा ने एक अपने जो इंजन्स थे वो सप्लायर से लिए थे, उस इंजन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट मीट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट टोयोटा ने क्या करा, सारी की सारी कार वापस मार्केट से ले ली। तो ये क्या करा, उसकी एक सप्लायर की वजह से उसको जो दिक्कत हुई है, उसने वो सारा का सारा लॉस अपने ऊपर बियर करा है। नेक्स्ट टाइम वो सप्लायर को चेंज कर देगा। तो सप्लायर प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। Next comes to your market intermediaries. Market intermediaries are those companies that help in promoting में help करती हैं, selling goods में करती हैं, distributions में करती हैं। Like अगर आपने goods बना दिया, आपको आपकी फैक्ट्री से जो कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं, those are market intermediaries. They act as a middleman की तरह एक्ट करती हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और मार्केटिंग करती हैं हमारे प्रोडक्ट की। लाइक PR एजेंसीज होती हैं, ऑल दिस एक्ट एज योर मार्केटेड इंटरमीडिएटरीज। अगर उन्होंने अच्छा प्रमोट करा, आपकी अच्छी इमेज जाएगी, आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बिकेगा, अदरवाइज वो नहीं बिकेगा। Customers play an important role in the success of any organizations. The company must study the customers को जानना चाहिए। अगर उनको कस्टमर ने, लाइक टोयोटा का एग्जांपल लेते हैं, अगर उन्होंने अपनी कार वापस ना लेती वो मार्केट से और जिनको लॉस हुआ उनको पैसे ना देती, तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम टोयोटा की कार नहीं परचेज करते। अब उनका फेथ बन गया कि मार्केट में हाँ, अगर कुछ गलत भी है तो कंपनी वापस ले लेगी अपना प्रोडक्ट, वो रिलायबल है, वो अपनी हर चीज़ के लिए अपने आप को अकाउंटेबल कर रही है। सो कस्टमर satisfaction is must for any marketer if they want to succeed in the society or in the environment. So company इतना लॉस बियर करती है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। So न्यू कस्टमर में बी अफेक्टेड बाय द एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। तो एक मार्केटर या माइक्रो एनवायरनमेंट में हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो अगर हमारे को उसके लिए कुछ लॉस भी होता है, कंपनी उस लॉस को बियर करने के लिए रेडी होती है। नेक्स्ट कम टू योर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स, अगर मुझे पता है मेरे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रिएक्शन होगा उनका, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अगर मुझे पता है मेरे कॉम्पिटिटर की ये स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली या तो मैं उससे अच्छी स्ट्रेंथ का अपना प्रोडक्ट लेके आऊँगी, अदरवाइज मैं उस मार्केट में नहीं जाऊँगी। या उसको मुझे पता है उसकी ये वीकनेस है, मैं उस प्रोडक्ट में वहाँ पर लॉन्च करूँगी। सो इफ़ अ मार्केटर हैव टू सक्सीड इन अ बिजनेस और इन अ एनवायरनमेंट, तो देन ही मस्ट स्टडी इट्स कॉम्पिटिटर्स वेरी ब्रीफली। बहुत अच्छे से उसको कॉम्पिटिटर को अपना समझना होगा, जानना होगा। एवरी कंपनी फेस अ वाइड रेंज ऑफ कंपटीशन करती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली होगी तो आपका प्रोडक्ट बहुत बेकार रहेगा। क्योंकि आप जब आपके पास सामने कंपटीशन आता है, अगर आप कॉम्पिटिटर से अच्छा करते हो तो आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। सो दे आर द एक्टिव अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट, दे आर द ओनली वन दैट इज अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। नेक्स्ट कम्स टू योर पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल का ग्रुप होता है जो वेरी क्लोजली रिलेटेड करते रहते हैं बिजनेस से। लाइक बिजनेस पब्लिक फाइनेंस होता है, मीडिया पब्लिक्स होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। अगर वो हमारे से अच्छे हैं, हमारे बिजनेस के लिए अच्छे हैं, अगर वो हमारे से खुश हैं, हमारी स्ट्रैटेजी से, ट्रेड यूनियन से अगर खुश हैं तो दे हमारे एक्शन नहीं लेंगे। अगर वो हमारे से नाराज़ हैं, दे विल टेक अगेंस्ट एक्शन, हमारे लिए बेकार एक्शन लेंगे, हमारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, उसको डी प्रमोट करेंगे हमारे गुड्स को। सो हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमारे को पब्लिक से इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट में हैव अ रियल और अ पोटेंशियल इंटरेस्ट इन आर बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट होता है एंड इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस एबिलिटी को टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। सो मुझे उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है, किसी भी हालत में मुझे उनको डिससेटिस्फाई नहीं करना।
So all this is the part of your micro environment. These are the components of micro environment, and every marketer have to study these. In the next lecture we will be covering your macro environment. Thank you. If you have any doubt, please do send your queries. Thank you.